Hello and welcome. This is part 4 of the series of cartoon explanation of the second book, that is Politics in India Since Independence. So, in part 3, I have explained the cartoons till page number 122, and actually, only one cartoon of 122 was discussed in that part. So, in this part, I'm going to start from page number 122 of the second book, that is Politics in India Since Independence. Let's begin. So this is the second cartoon on page number 122 of your second book. Now the name of the chapter is The Crisis of Democratic Order, and in this cartoon you can see Indira Gandhi here, and she is holding a placard in her hand. I toppled the Janta government. The other leaders, if you see in this cartoon, this is Chaudhry Charan Singh, and this is Morarji Desai, and this is Babu Jagjeevan Ram. Okay, so three other leaders you can identify. Now this cartoon was published after the win of Indira Gandhi in 1980 elections. So in 1977 the Janata Party government came, but the Party government fell in 1979 and the elections were conducted in 1980. Now, the Janata Party government, when it was formed in 77, Morarji Desai became the Prime Minister. Okay. After some time, there was a split in the Janata Party, and due to which Chaudhry Charan Singh, Morarji Desai's government fell, and then a faction of Janata Party, which was led by Chaudhry Charan Singh, that formed the government with the support of Congress. Okay, only after 4 months, Congress withdrew support from the Charan Singh's government, and that was the reason why the government of Charan Singh fell, and that is how the Janata Party rule came to an end. Now, since Congress had taken back the support from the Janata Party government, that is why here this placard is saying that I toppled the Janata government. Okay. But the matter of fact is that, see what these leaders are saying. They are saying that's a lie. Everybody knows we all worked for 2 years and brought it down. Okay, so why these leaders are saying this? Because actually the Janata Party government fell because of its own internal conflicts. Right from the time when the Janata Party government was formed, there was a lot of internal conflict over the issue of that who will become the Prime Minister. So though Morarji Desai was elected as a Prime Minister, was chosen as a Prime Minister, there were power struggle going on within the party for the post of Prime Ministership. And these internal factions ultimately led to the downfall of the Janata Party government. So that is why they are saying here that we worked for 2 years and brought it down. So it is basically a satire on the fall of the Janata Party government. Now you can answer the questions. The two leaders in the cartoon, now you can easily write the names of the two leaders: Indira Gandhi, Charan Singh, Raji Desai, Jeevan Ram, any two leaders you can write. Why the lady is holding the placard, I toppled the government, that you can write also. What is the other group saying and why they are saying so, that also I have explained. So we can move to the next cartoon now. The Crisis of Democratic Order, on the same page, page number 122. This is the third cartoon that is given at the last. Now, if you see this cartoon here, you can see a big umbrella. Now, this umbrella represents the Janata Party. See, Janata Party is written here on this umbrella. These people who are holding this umbrella, they represent the different political parties that formed the Janata Party. तो जब जनता पार्टी बनी थी उसमें जब कई छोटे छोटे पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी, तो ये लोग उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Now see what they are saying. They are saying by all means let's get under one umbrella, but let me do first. ठीक है, तो किसी भी तरह से हम सब एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाएं, यानी कि हम सब एक पार्टी बना लें, जनता पार्टी बना लें, बट मैं उसमें सबसे पहले रहूंगा. इसका मतलब ये हुआ दैट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इशू दैट
whose candidate will become the prime minister, who will be having more influence in the party, who will hold more power in the party। तो इन सारे इश्यूज को लेकर जो जनता पार्टी थी उसके बीच में काफ़ी मतभेद थे और काफ़ी स्ट्रगल था इन इश्यूज को लेकर। अगर देखिए आप ध्यान से तो ये जितने भी लोग आपको ये अम्ब्रेला होल्ड करते हुए दिखेंगे वो एक्चुअली अम्ब्रेला को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि वो उसके ऊपर काबिज हो जाएं, उसके ऊपर उनका अधिकार हो जाए और फिर वो उसमें पहले जाएं। ओके, सो इस तरह का ये कार्टून इस तरह से एक सटायर, अगेन इट इज अ सटायर ऑन द जनता पार्टी। What does the umbrella represent in the cartoon? That is Janata Party. What do the different men in the cartoon represents? Different constituent parties of that comprise the Janata Party। And interpret the caption of the cartoon. This is the caption. Now you can interpret the caption that there was an internal struggle in the party as to who will hold the most important or influential position in the party। So now next cartoon is this is on page number 124, and in this cartoon you can see first this caption. This was the election slogan of the elections of 1918। Okay, so in 1977 the Janata Party government was formed, 79 the Janata Party government fell, and in 1980 there were again midterm elections in the country। In this midterm election Congress gave the slogan इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट को आप कंट्री के लोगों ने देख लिया कि वो किसी भी तरह से उन समस्याओं का, उन चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाई जो कि उस वक्त देश के सामने खड़े थे। तो अगर आपको देश को बचाना है तो इंदिरा को बुलाइए, फिर से इंदिरा को इलेक्ट कीजिए फिर से। Now in this election, this is Indira Gandhi. She is shown here with a broom in the hand, depicting that she has clean swept all the opposition। ये opposition को उन्होंने उस पे झाड़ू मार के और उसको कचरे में डाल दिया है कि बिल्कुल अब रास्ता उनके लिए साफ है, मैदान उनके लिए साफ है। तो ये उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री को दिखा रहा है इन द 1980 इलेक्शन, दैट शी क्लीन स्वीप्ड ऑल हर ओपोनेंट्स इन द 1980 इलेक्शंस। ठीक है, तो इसी को ये दिखा रहा है। विच कार्टून वॉज which election was fought by the Congress on the slogan shown in the cartoon, this Indira Bulao Desh Bachao? It was the election of 1980 midterm elections. Who is shown in the with a broom in the hand? Indira Gandhi. Write any 2 points related to the results of the polls mentioned in the cartoon। Now this is the 1980 polls results that is being asked here। अब इसमें एक बात यहाँ और समझने की है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। देखिए आपके पेपर में देयर आर कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, देयर इज अ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। ओके, तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन होते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन पैसेज के ऊपर या उन कार्टून्स के ऊपर उनका डायरेक्ट आंसर आपको उस पैसेज या कार्टून में मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस तो कार्टून से डायरेक्टली रिलेटेड हैं पर एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड किसी और इशू से पूछ लिया जाए। ऐसा भी हुआ है। पैसेजेस में भी ऐसा हुआ है कि पैसेज में कोई टर्म है या फिर कोई एक फिनोमेना है जिसको कि एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। ओके, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो नाउ द रिजल्ट्स ऑफ द 1980 पोल्स कहीं इस कार्टून में आपको लिखा नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इफ़ यू हैव सीन द कार्टून, इफ़ यू हैव रेड द कार्टून एंड इफ़ यू हैव रेड द टेक्स्ट। ओके, तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो यू कैन नॉट से दैट इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और ये इस तरह से गलत पूछ लिया गया है, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम भी गलत नहीं है और इसको बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप पोल्स जो 1980 पोल्स थे उससे रिलेटेड कोई भी 2 रिजल्ट्स आप लिख सकते हैं। एक तो रिजल्ट आपने यहाँ पे देख ही रहे हैं, दैट इज इंदिरा गांधीज विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द इलेक्शन, एंड द नेक्स्ट रिजल्ट यू कैन राइट अबाउट द डिफीट ऑफ द जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज। उसकी डिफीट किससे रिलेटेड आप कोई भी कॉन्सिक्वेंस लिख दीजिए, वो आपका नंबर उस पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। Now this is the cartoon on page number 172 in your book, and the name of the chapter is Recent Development in Indian Politics। Now this cartoon is very important, I think, for this year especially।
अब इस कार्टून में आप बहुत सारे लीडर्स देख रहे हैं और ये जो लीडर्स हैं ये एक रोलर कोस्टर राइड पे हैं, ठीक है। तो और इस रोलर कोस्टर राइड का नाम है इंडियन पॉलिटी। Okay, so as you all know that the era of coalitions that started in 1989 in India represents an era where there were very short governments, छोटी छोटी governments बनी, 2 साल में कोई government गिर जा रही थी, कोई 1.5 साल में गिर जा रही थी, कोई 1 साल में गिर जा रही थी. There were frequent changes of prime minister, or these were coalition governments in which the constituent parties जो थी they were joining the coalition with their own agendas. बहुत सारे एजेंडा थे और इन पार्टीज का ये मकसद था कि वो उस कोalition के थ्रू अपने एजेंडा को फुलफिल करें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आप देखेंगे और वो दे सम ऑफ देम आर होल्डिंग सम फ्लैग्स ऑल्सो, या उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स देयर एजेंडा। फाइन, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इनमें लीडर्स कौन कौन है। तो ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो है ही इज राजीव गांधी, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 84 to 89, ठीक है। और ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। तो 84 में आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ी सिंपैथी वेव ने वर्क किया इन फेवर ऑफ कांग्रेस, एंड कांग्रेस वन लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द 1984 इलेक्शंस। तो 84 से लेकर 89 तक ये कांग्रेस के लीडर थे और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैं। और दूसरा अगर आपको मैं बताऊं तो ये देखिए, इनको भी आप पहचान गए होंगे शायद। 1989 में दिस इज वीपी सिंह, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ही बिलोंग टू द नेशनल फ्रंट। तो 1989 में जब कांग्रेस हार जाती है इलेक्शन में, तो कांग्रेस डिसाइड करती है टू सिट इन ऑपोजिशन। तो कांग्रेस हारती तो है बट स्टिल कांग्रेस वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन कांग्रेस की सीट्स इतनी कम थी दैट इट डिसाइड्स टू सिट इन द ऑपोजिशन। तो एक कोलिशन बना और उस कोलिशन का नाम था नेशनल फ्रंट। इस कोलिशन के जो लीडर हुए वो थे वीपी सिंह और वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इन्हीं के साथ मैं इनको भी बता देती हूँ। तो ये जो पीछे दिख रहे हैं आपको, ये हैं चंद्रशेखर, ओके। तो 1990 में जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट है वो गिर जाती है और फिर कोलिशन वही रहता है, नेशनल फ्रंट ही रहता है। उसके जो दूसरे लीडर थे चंद्रशेखर, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में गवर्नमेंट बनती है। तो ये है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के आगे जो इनको आप ये देख सकते हैं, ये हैं ज्योति बसु। Jyoti Basu, who was the chief minister of Bengal for a very long time, and he was of the CPIM, and he played a very important role in the politics of the 90s. एक समय, इस समय की पॉलिटिक्स में ऐसा भी आया था कि ऐसा लग रहा था कि he will become the prime minister of the country, but there were certain factors जिसकी वजह से वो नहीं बने, उन्होंने मना कर दिया। तो ये ज्योति बसु हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पीरियड की पॉलिटिक्स में। फिर इनको आप पहचान गए होंगे, ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी प्लेड अ वेरी पाइवटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द बीजेपी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो इलेक्शंस में जो बीजेपी की जीत थी वो उनके उसमें अगर आप मूल ऐसे 2 पर्सनालिटीज निकालेंगे जिन्होंने ये काम किया है बीजेपी के लिए, तो वो एक है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक, और उसको उन्होंने लीड किया था। तो ही बिकेम अ वेरी नोन फेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ 90s एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ 90s। उसके बाद जो आप इनको देख रहे हैं, ये हैं देवीलाल। देवीलाल was the Deputy Prime Minister of India under the National Front Government। तो National Front Government जो 1989 से 91 तक थी, जिसके 2 प्राइम मिनिस्टर हुए, वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर। सो ही वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। एज उसके पहले वो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम। देन उसके बाद इनको जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये हैं एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव was the leader of Andhra Pradesh and his party was Telugu Desam Party. Okay,
he was also, he had been a superstar of the Telugu film industry. तो बहुत ही पॉपुलर फिगर आंध्र प्रदेश के, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल टीडीपी ने प्ले किया इन दी एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया. उसके बाद फिर इनको जो ये देख रहे हैं आप, ये है करुणानिधि. करुणानिधि वॉज ऑफ डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कळगम. तो जो द्रविड़ पार्टीज हैं उनका तमिलनाडु में बहुत पहले से ही बहुत प्रभुत्व रहा. और करुणानिधि ने भी जो दोनों ही जो द्रविड़ पार्टीज थी ऑफ तमिलनाडु, डीएमके एंड एआईएडीएमके, बोथ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस टाइम. देन इनको जो आप देख रहे हैं ये पीके महंतो हैं, प्रफुल्ल कुमार महंतो. तो प्रफुल्ल कुमार महंतो जो थे वो एजीपी के लीडर थे, असम गण परिषद के लीडर, एंड ही वाज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो 85 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे असम के. एंड दिस असम गण परिषद वाज ग्रोन आउट ऑफ आसू. तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो आसू की थी, जिन्होंने आसाम में पूरा स्ट्रगल किया लीड, उसके लीडर थे ये. और वो जब समझौता हो गया था, आसाम समझौता, और असम गण परिषद की स्थापना हुई थी, तो उसके लीडर बने और फिर चीफ मिनिस्टर बने. ओके, तो ये बहुत से लीडर्स, मेरे ख्याल से लीडर्स तो अब आप सबको पहचान गए हैं. तो ये जो रोलर कोस्टर राइड है, दैट इज शोइंग द अप्स एंड डाउन्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम फॉर डिफरेंट पार्टीज. तो कभी कोई पार्टी किसके साथ जा रही है, कभी कोई किसके साथ जा रही है, कभी कोई गवर्नमेंट में है, कभी कोई ऑपोजिशन में आ गया. तो इस तरह से इस पीरियड में चलता है. दैट इज वाई दे आर बीइंग शोन ऑन अ रोलर कोस्टर राइड. सो विच एरा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स डज अ कार्टून रिप्रेजेंट? नाउ यू कैन आंसर दैट. 4 leaders, I think you should answer now. All the leaders, you can identify all the leaders in the cartoon. Why these leaders are shown in the cartoon on a roller coaster ride? That question can be answered as well now. उसके बाद ये लास्ट कार्टून इस वीडियो का, that is on page 174. बहुत छोटा सा कार्टून ये दिया हुआ है, मिस मत करिएगा. अब इस कार्टून में अगर आप देखें तो these men are trying to make a pull. ओके, तो ये एक ओवरब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और इस ओवरब्रिज में द मैन हु वाज लीडिंग, ये जो ब्रिज है इसको कंस्ट्रक्शन में, द मैन हु वाज लीडिंग is Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh. And what he is saying risky, difficult, yes, but once we reach there, all our worries will be over. Think of that. Okay, तो अब ये कहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं? ये यहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर. और यहाँ पे जो बोर्ड लगा है वो है वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी. ओके, एंड व्हाट दिस बोर्ड इज शोइंग इज दैट न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन. तो ये दिस शोज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 इन इंडिया. और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड द मिनिस्ट्री वॉज दैट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव. देखिए यहाँ पे दिखाया है उनको. तो पीवी नरसिम्हा राव के मिनिस्ट्री में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे एंड ही फॉर्मुलेटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. So he is saying that though this transition, this whole process is a bit difficult, it's a bit challenging, but once we reach there, then all the problems will be solved. तो ये हमको ultimately लेकर जाएगा, ये bridge जो new economic policy का है, this will lead us to prosperity. Okay, that is what he is saying. So what does a BIS under construction represent? It represents the new economic policy. Identify the leader, Manmohan Singh. Why he is shown leading them? Because he was the architect of the new policy, new economic policy, the finance minister at that time. And what is the aim of these men in the cartoon? To lead everyone to prosperity. This is the aim of the people shown in the cartoon. तो इसके साथ ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ. इस अगले वीडियो में एक वीडियो और बचा है इस सीरीज़ का. मेरे ख्याल से उसमें सारे कार्टून सब जो बचे हैं वो कवर हो जाएंगे, तो उसमें मैं बाकी के वीडियोस कंप्लीट कर दूँगी. सो आई एम गेटिंग गुड फीडबैक ऑन दीज कार्टून सीरीज वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ कीप पोस्टिंग मी योर क्वेरीज एज वेल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.